ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کی گیدڑ بھبکی ختم نہ ہوئی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے کہا اپنے فیصلے ایران کو عقل بندی سے کرنا ہوں گے، کسی بھی صورت ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کہتا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کنٹرول کر رہا ہے لیکن اس کی اپنی کوئی بحریہ نہیں، جتنا وقت درکار ہوگا ہم ناکہ بندی برقرار رکھیں گے۔ جنرل ڈین کین نے کہا ابنائے ہرمز کا گھیراؤ تمام ملکوں کے جہازوں پر لاگو ہے، ابنائے ہرمز سے کسی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کا سفیر بن گیا۔ خطے میں قیام امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت الگ الگ محاذوں پر سرگرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے بعد دورہ قطر پر دوحہ پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے وزیر اعظم و پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ قطری مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی دی۔ دوحہ ایئرپورٹ اور دوحہ شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ خطے اور عالمی امن کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور قریبی رابطہ کاری کی اہمیت پر زور۔ قطر اور دیگر علاقائی ممالک پر حملوں کے خلاف پاکستان کی مذمت کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر، شہباز شریف کا شاندار استقبال۔ قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی قطری فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم کے جہاز کو حفاظتی حصار میں ایئرپورٹ تک چھوڑا۔ وزیر اعظم نے قطری قیادت اور پائلٹس کا اس شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ جنگ نہیں، صرف امن کا پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں عباس عراقچی نے لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ مزید کہا خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ لبنان جنگ بندی مذاکرات کے عمل کا حصہ ہے اور اسے اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں 2 دن میں لبنان اسرائیل محاذ پر بہتری کے آثار حوصلہ افزا ہیں۔ لبنان میں امن قائم ہونا اور مسلح کارروائیوں کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ مزید کہا پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکراتی عمل مجموعی طور پر 30 گھنٹے جاری رہا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لاوٹ کی نیوز بریفنگ۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ کہا ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ کر دی گئی ہے۔ ناکہ بندی ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے تمام ممالک کے جہازوں کے خلاف کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین جنگ بندی اور امن مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ چین علاقائی ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہے۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب موصول۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رقم منتقل ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق سعودی عرب نے $2 ارب پاکستان کو منتقل کر دیے۔ $5 ارب ڈپوزٹ کو طویل مدت کے لیے توسیع بھی دے دی۔ امریکی جریدے دی واشنگٹن ٹائمز کا آپریشن غضب دل حق پر تفصیلی تجزیہ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکاروں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ سویلین آبادی کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پیشہ ورانہ مہارت سے کام کرتے ہوئے سفارتکاری اور گورننس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہیں۔ فوجی کارروائی کے ساتھ سفارتی، سیاسی اور اقتصادی اقدامات کو ایک جامع حکمت عملی کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
दुश्मन के नापाक अज़ान खाक में मिल गए। आज़ाद कश्मीर में तखरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मुजफ्फराबाद में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक के लिए काम करने वाला कारिंदा पकड़ा गया। आईजी आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक कहते हैं इरफान नामी एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक के लिए काम कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम हसास मकामात की लोकेशंस लेता रहा। मुल्जिम मासूम बच्चों को पैसे का लालच देकर तैयार करता था। हसास तनसुबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार। समंदरी हुदूद को मजीद महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान नेवी का मुकामी सतह पर तैयार एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने समंदर में हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और पैंतरा बदलने की सलाहियत से लैस दुश्मन के दिफाई निजाम को चकमा देकर मुहलिक वार करने की भरपूर सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से पाक बहरिया और साइंसदानों को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम ट्रंप ने लिखा खत्ते में सिफारती कोशिशें कशीदगी कम करने के लिए जारी हैं। इजराइल लबनान तनाज़े में मुमकिन अमन की नई उम्मीद पैदा हो गई। मुज़ाकरात की बहाली मशरिक़ वस्ता के लिए अहम पेशरफ़्त करार। जंगबंदी में लिबनान के खिलाफ हमले बंद करना होंगे। अमरीका लिबनान समेत खित्ते में जारी जंग बंदी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्वीट लिखा लिबनान में जामे जंग बंदी की कामयाबी बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह की मुसलसल जद्दोजहद पर मुनहसिर है। ईरान और इसके ज़ेर असर महवर मुज़ाहमत मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। ईरानी स्पीकर ने अमरीका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा इसराइल फर्स्ट पॉलिसी से पीछे हटना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि खित्ते में हकीकी और पायदार अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर मदीना ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री। मुल्क व कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत खास करके सलाम अक़ीदत। ईरानी शहरियों का पाकिस्तानियों की यकजहती का खैर मकदम। तेहरान में रैली के दौरान तशक्कुर के नारे। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली रैलियां और अवामी हिमायत ईरानियों के लिए बाइस फ़ख्र हैं। पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और यकजहती का पैगाम उन्हें मौसूल हो चुका है जिसे कभी फरामोश नहीं करेंगे। रैली में मुकर्रिरीन का पाकिस्तानी कौम को खैर तहसीन। तवानाई बहरान के बाद यूरोप में फिजाई ऑपरेशन पर शदीद खतरात मंडलाने लगे। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बैविल ने खबरदार कर दिया। कहा यूरोप में जेट फ्यूल के ज़खायर सिर्फ तकरीबन 6 हफ्तों तक बाकी रह गए हैं। जल्द परवाजों की मनसूखी का खदशा है। फातेह बैविल ने वार्निंग दी कि अगर तेल की तहसील बहाल न हुई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के आगाज के बाद जेट फ्यूल की कीमतें तकरीबन दुगनी हो चुकी। दुनिया भर की एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा, इजाफी फ्यूल सरचार्जेस और बैगेज फीस बढ़ाने जैसे इक़दाम शुरू कर दिए। MDIMF की पाकिस्तान की इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। कहा कि पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की सूरत हाल के बायस बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। बिजली में 1530 मेगावाट कमी का सामना है। पीक टाइम में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन बंदिश। शहरों में 10 से 12, देहातों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 8 घंटे बिजली बंद। कराची में मैट्रिक और ओ लेवल के तलबा बिजली की लोड शेडिंग के अजाब का शिकार। इम्तिहानात की तैयारी करने वालों का कीमती वक्त ज़ाया, जहनी अजियत का शिकार। वालिदैन का इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग रुकवाने का मुतालबा। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग भी जारी। कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों गैस बंदिश के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ख़वातीन के लिए खाना बनाना चैलेंज बन गया।
पाकिस्तान की पहली तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का मुआहिदा। लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने दस्तखत किए। मंसूबे के तहत तेज रफ्तार ट्रेन लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान सफर महज 2.5 घंटे में मुकम्मल करेगी, जिससे मुसाफिरों को तेज, महफूज और जदीद सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ऐसा सिंध बनाएंगे जहाँ हर शहरी को तरक्की के यकसा मौक़े मैसर हों। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि खुसूसी अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली से कानून पास करवाया। हुकूमत कोई मनसूबा अकेले नहीं कर सकती, सबका ताउन ज़रूरी है। लगता है बंगाली बाबा ने किसी को इंगेज कर दिया है। कराची को साफ करने का मुतालबा भी बैनर लगाकर किया जा रहा है। मेयर कराची का तंज मुर्तजा वहाब कहते हैं, जमात इस्लामी या कोई मुखालिफ मेरे खिलाफ बातें करता है तो करे, लेकिन शहर में बैनर या चौकिंग गैर कानूनी है। किसी भी मुआशरे में सड़कों पर बैनर नहीं लगे होते। लाहौर, इस्लामाबाद में भी ऐसी सूरत हाल नहीं। अदालत ने भी हालिया दिनों वॉल चौकिंग के खिलाफ फैसला दिया है। रावलपिंडी के थाना टैक्सिला की हुदूद में घरेलू नाचाकी पर 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस, RPO पिंडी से रिपोर्ट तलब, मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मैट्रिक बोर्ड कराची के बुलंदो बांग दावे धरे के धरे रह गए। लियारी में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल नंबर 1 में बद इंतजामी, इम्तिहानी मरकज में तलबा जमीन पर बैठकर पर्चा हल करने पर मजबूर। सहूलियात के फुकदान ने तालीमी निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। पाक तुर्क मुश्तरका मश्क जिना 13 तुर्की में कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज के दस्तों ने अपने तुर्क स्पेशल फोर्सेस के साथ शिरकत की। तमाम तरबियती और अस्करी सिफारती मकासद कामयाबी से हासिल किए। दोनों मुल्कों के जवानों ने मश्क के दौरान आला पेशेवराना महारत और अमली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मश्क का मकसद इंसाई दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार, मश्कों और तकनीक को मज़ीद बेहतर करना था। PSL सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मुसलसल नाकामियों से दोचार रावलपिंडीज की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ रावलपिंडीज की पूरी टीम 9 विकेटों पर 121 रन भी बना सकी। मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 3-3 विकेटें ली। 122 रन के ताक़ुब में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग जारी। और मुनफरिद अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ मज़ाहिया अदाकार बब्बू बराल को बिछड़े 15 बरस बीत गए। 3 अशरों पर मुहीत जिंदगी में बब्बू बराल ने भरपूर उरूज देखा। मज़ाहिया फनकार ने 20 फिल्मों में भी काम किया।